Today we have with us Mr. Amitav Singh, who's a black belt in Indian martial arts, that's Tang Ta, and has expertise in Indonesian form, that is Pencak Silat as well. He has represented in Maharashtra, Sikkim, and West Bengal in different games. At present, he is the General Secretary of All West Bengal Tang Ta Association and Darjeeling District Pencak Silat Association. He has his own freehand fitness club known as 360 Degrees Fitness Academy, and he is taking things on next level for his field. And we are very glad to have you here with us today. Welcome, Amitav, to Hello. our podcast. Thank you. Thank you for so much being for part having of me. it. Definitely, man. How are you? How's everything going? I'm good. Right now, everyone is having the same situation. We all are inside our home, Yeah. So even the self-quarantine. champions are facing the same situations right now, right? Exactly. It's same for every individual in this earth. And this is the most Okay. important time to talk to a martial artist, like how to maintain fitness in this lockdown situation. What are your views on that? You Yeah. know, it's like if you are a martial artist, it's like it's a very common thing for every martial artist. Like they can't stay away from martial arts. Hmm. So it's like whether you are staying in self quarantine, whether you are in lockdown, but definitely once or twice in a day, you will go and you will feel like let's do some moves, let's punch, okay, Some let's kick kicks. on Yeah. our kicking pad. So it's like every day you will feel the same situation. Hmm. It's kind of warm up for you. Then after that, when body gets heat up, you can Hmm. go for some exercises, some walk at least. So So you it's almost basically, addictive. yeah. So you basically suggest people to do not like without weights exercises like without any weights. Yes. There is a reason behind that actually. Hmm. The main reason is like you know everyone can't go to the gym. Okay, a small 4 year kid or a 5 year kid, okay, or old age person who is around 65, 70, their Hmm. bone density becomes weak, so they can't go to the gym and lift heavy weights. Okay, Hmm. Yeah. so the only thing which we prefer is like freehand fitness. It Hmm. don't even require any equipments. You don't need to go outside of your home. You just need a mat. You just have to know some basics of exercise, daily routines, like every day what you have to do, and you can Hmm. do it anywhere. And once you adapt the discipline of it, you can do it anytime, anywhere, and no restriction can stop you. Yes, Like even if you're locked exactly, up, you can totally exactly, do it, and exactly. the discipline won't go away. Yes, right. It makes you more So dedicated. exactly, and you're not relying on anyone else, the environment, the gym environment, or the people around you. You can just do it by yourself because that's how you have started it, right? Yes, right. Yes. And Okay, so when I I, used to I just learn want to start with this Taekwondo, one. okay, let me just tell you a small story about my life. Yeah, I used to take okay. Taekwondo lessons when I was a kid. So till class 11th, I learned Taekwondo, and like it was a passionate thing for me. तो वैसे पढ़ाई के लिए कभी इतना सुबह 5 बजे उठ के नहीं गया, बट ताइक्वांडो की वजह से सुबह 5 बजे उठ के जाता था स्टेडियम में. तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है ड्यूरिंग दोस ताइक्वांडो एक्सरसाइजेस my like जो my guide was there, like he used to like do make us do a lot of exercises, a ton of exercises, जो आज मैं जिम में इतने टाइम से जिम करता हूँ या सब कुछ वर्कआउट करता हूँ उतना कभी भी नहीं कर पाता था जितना वो कॉन्टिन्यूसली किक्स और कॉन्टिन्यूसली जो एक्सरसाइज करने से होता था. तो आई डू बिलीव कि उससे आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, अंदर अंदर से आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हो. बट जो जिम से लाइक सिर्फ विजिबल बॉडी से बेटर है आपका कोर जब स्ट्रांग होता है. So I do believe that is like something different, and one should like know basics of martial arts and can do exercises without weights. Yes, Yeah, true. go ahead with the questions. Definitely. It's more functional and it goes with everything and anything. So basically, I want to start with Amitav and I want to ask you this question that is like in everyone's mind. What exactly martial arts is? What exactly? It is very loaded term and we have seen it in Hollywood. So what exactly it is? Don't go on Bollywood. It's like basically we always learn, English वगैरह में पढ़ा जाता है. तो the teacher, they teach like क्या है, like what word you are talking about. Suppose you're saying आपको कोई word का अगर मतलब समझना है, then you have to first, separate the words like martial art. Okay. So जब आपको बताया जा रहा है, it's a form of art.
Hmm. Okay, suppose you're doing drawing, it is Hmm. also art. Hmm. So it's same thing, it is a art which makes you more disciplined, more motivated, fit, healthy, and more self confident. Hmm. Okay. So Okay. martial art, like, yeah, which are the different forms of martial art? Like, what are the according to you, कौन सी सबसे best form है martial art की जो one should know? Okay, according to me, like I have learned taekwondo as well, and from last 5 years, more than 5 years, I am in Indian martial arts. Hmm. So when I shifted from Korean form to Indian form, there was Hmm. many things, which I got to learn. It's like it's more disciplined, and it's like they make you, more punctual. It's not Hmm. like taekwondo classes वगैरह में मैं जाता था. I used to go, ठीक है, बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी गया, सीखा हल्का फुल्का, देख रहा हूँ कोई इतना किसी को भाव नहीं देता है. They are just, some are like trying to just sharp their kicks. कि They हाँ are like, yeah हाँ, बढ़िया बढ़िया फॉर्म के किक्स मार रहे हैं, हाँ. बट कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था. Hmm. बट व्हेन आई शिफ्टेड टू इंडियन मार्शल आर्ट्स, Hmm. तो मेरे को आई फील मोर, like, there is some changes which is, Engaged. I am feeling since I started Indian martial arts. It's like the sir used to teach us uh, that wheelchair, वो जो punishment मिलता था हमको schools में, हाँ. बोलते थे Wheelchair. ना, ये चेयर बन जाओ. ओके, सर हाँ बोलते थे चेयर बन Mhm. जाओ, ओके, पंचिंग पोजीशन में बैठ जाओ, एंड हाँ. हाफ एन आवर दैट इज योर ट्रेनिंग. हाफ एन Okay. आवर Okay. चेयर ही बने रहो, दैट इज योर ट्रेनिंग. अगर आपने मूव किया, Mhm. सपोज यू आर मूविंग, सो ही विल कीप गिविंग राउंड्स. जिसने भी मूव किया, ही यूज्ड टू hit him with a wooden stick. Okay, so अच्छा. it's like we learned that, you have how to adapt, Imagine when कितना situation. core strong हो जाएगा, आप कितने Yes, ज्यादा exactly, strong बन जाओगे इन exactly. चीजों से. And if you will make sound, he will hit you again. So Hmm. it is more Okay. painful. You can't even move here and there. So these were the things which I felt, it's making me more disciplined. It's making me like, it is making me prepare for such situation. Suppose I am in a college and I got an argument with my professor. I know that he is Mhm. wrong, but Hmm. Okay. he's my professor. At the end of the day, I have to respect him. So I Okay. can't say him anything bad. Hmm. So it's making you more disciplined for your daily life. It's Hmm. making you a good person. So Hmm. basically, it's not just an art form. It's a way of life. It's a philosophy. It makes you Exactly. disciplined and It, in yes. control of yourself completely. Like makes you like, for example, Carl Jung was a psychologist who said ki if you're not in touch with your darker side, the other side of your personality, then you're not complete man. So you have to Exactly. make it a conscious part of your personality, how dangerous you can be, and then make it in control and use it for positive things. So Yes. it is something like that. Yeah, Yeah. It's a that's way of really life. amazing. Yeah. So one question is there, like how being a martial artist, how it changes you. Like you said, it makes you a more patient person. Like what exactly, and it also is very important for you to avoid fights. Like people who can actually fight, they avoid fights most of the time, right? And people Yeah. who don't have much of a clue, they are more prone to getting into one. So how exactly your mind shift changes to being more collected person and calm person when you know how to actually protect yourself and defend yourself. I have noticed in myself when I was not into martial arts and all, but I was a sportsman. Mm-hmm. I used to play basketball. I have done specialization in basketball as well. So it's like I used to get very aggressive, Hmm. in some interval of time, whether we are winning, whether we are losing. If I had a fight with my Mm-hmm. teammates or Hmm. opposition, suppose I am not happy with the referee, I used to get very opposed. I used to feel very, angry. It's like Hmm. it's not in control. And I Hmm. was like, Mm-hmm. ठीक है, जो भी है देख लिया जाएगा मैच में. व्हाट ही कैन डू, ही इज लाइक जस्ट ज्यादा से ज्यादा कार्ड दे के बाहर कर सकता है. बट Hmm. इट्स लाइक ठीक है, मैंने भी अपना भड़ास निकाल लिया. Hmm. बट इट्स नॉट द वे. वी Okay. हैव लर्नड आफ्टर जॉइनिंग मार्शल Exactly. आर्ट्स. You इट्स लाइक, became more Mm-hmm. calm. yeah, it's like we have learned, you are martial artist, some techniques, some kicks, some punch, but जो आपके सामने बंदा है, he is not a martial artist, right? Hmm. So Mm-hmm. suppose you are like, if you fall into some mess and हो गया ऐसा matter हो गया and करना पड़ा, I'm saying you, the first thing you have to do is avoid Hmm. as much as you can. Avoid. The Hmm. most important thing. Mm-hmm. ठीक है. So martial arts makes you more, like patient,
ठीक है सामने वाला बंदा गलत बात बोल रहा है, वो मेरे को कहते हैं नहीं, ना आई एम कि नॉट आप एग्री विद बड़े हिम। हो जाते हो, जैसे आप बड़े हो जाते हो आप झुकने लगते हो। जैसे अगर आज की हाँ, डेट में कोई कहे कि यार मैं खली को थप्पड़ मार दूंगा, खली वुड बी लाइक, ही विल स्माइल कि चलो कोई बात नहीं। तो यस वो आपको मालूम है आप इतने पेडेस्टल पे आप ऑलरेडी हो, आप छोटे आदमी से फिर आप यस भिड़ते ही नहीं हो। यस तो सिमिलरली And आपको you एक कॉन्फिडेंस देता don't है have to मार्शल आर्ट। prove yourself anything. या Hmm. एग्जैक्टली जो वो या हिंदी में कहावत है ना, अधजल गागर छलकत जाई, जो हल्का होता है ना, कमजोर होता है, वो ज्यादा कूदता है। जो कंटेंट या होता है, जिसको ठीक है नॉलेज है हर चीज में, अपने आप में कॉन्फिडेंट है, तो वो ज्यादा नहीं बोलता। यस यस। Yes, yes. बट That's ज्यादा ज्यादा गरजने वाले बरसते नहीं है, सुना होगा आपने। yeah, exactly. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Mhm. बट मजा आता है, पता है क्या होता है, जब आपका ताइक्वांडो वाला सीन चल रहा होता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग स्टेडियम में होते थे, तो हमारा ताइक्वांडो का ग्रुप होता था, बाकी सारे लोग डिफरेंट जो भी गेम्स खेलने आते थे। तो ताइक्वांडो वालों का एक अलग ही टशन चलता था कि हाँ दे आर फाइटिंग, मतलब वो एक अलग ही लेवल होता था। एंड यू जस्ट सेड ना कि पनिशमेंट देते तो ऐसा जमीन पे बिठा देते थे। तो माय सर व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि ऐसे सर के बल पे आपको ऐसा जैसे वो होता है ना डिप्स वाला पोजीशन, तो सर के बल पे लगा देते थे, कुछ भी गलती हो जाए और आप बहुत देर तक आप वैसी हो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक। एंड ही यूज्ड टू स्टॉप किक्स ऑन माय फेस, यहाँ पे ऐसे किक मारा और यहाँ पे रुक ओह गया। इतना डर लगता था। ये कंट्रोल होता है कि जो प्रॉपर बंदे होते हैं ना, उनका कंट्रोल बहुत सही होता है। Mhm. इट यस वाज यस वेरी राइट। फैसिनेटिंग फॉर मी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस Okay. ऑल प्रैक्टिस। या मैन या। और वो So जो ब्रिक्स Amitabh, तोड़ना। I'd like to ask you one thing: कि why is it necessary for everyone to learn martial arts? For everyone, because you know you don't know what is going to happen tomorrow. Okay, and Mhm. uh you know a crime, it don't see any religion, any caste, any gender. Hmm. Okay, Okay. so the most Mhm. important thing is like you don't know what is going to happen and you are not even prepared, you're not even into daily fitness, you're not even playing any sport. At Hmm. least you need to learn some basics of martial arts. Hmm. It will make you fit, it will make you confident, and you will feel that yeah, if I am going to fall into some mess, I can handle it. Yeah. Okay. So that makes you a more confident एक and हमारा complete person. स्टूडेंट था सेशंस के बीच में। सो दिस गाय, ये वो अपना मास्टर्स करता है, एमबीए कर रहा था, एमबीए के फाइनल ईयर में था। तो ही वाज, अभी जैसे होता है ना घर वाले कई बार आपको बचा के रखते हैं, इकलौते होते हो तो आपको बचा के रखते हैं, लड़ाई नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो उसका क्या सिस्टम था कि उसको कॉन्स्टेंटली बुली करते थे क्लास के लोग। ही वाज फिट, ऐसा कुछ नहीं था, बट अंदर से जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके सामने सामने मुंह पे उसको बोल देते थे बहुत सारी चीजें। तो ड्यूरिंग द सेशन ही वाज क्राइंग, बोल रहा कि नहीं भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों ने उसको सजेस्ट किया, जैसे सेशन के बीच में हमने कहा कि तू स्टैंड क्यों नहीं लेता अपने लिए, मैक्सिमम क्या होगा, वो एक तेरे को मारेगा, तू भी मार लेगा ना उसे, प्रॉब्लम तो खत्म होगी, कोई चीज होगी, तू अपनी चीज के लिए खड़ा तो हो, कोई तेरे को बुली नहीं कर सकता। तो एक बार मैंने जब उसको बहुत पंप करके भेजा कि तू खड़ा हो जाना वहां पे, जो होगा देखी जाएगी, पिट तो लेगा, एक बार थप्पड़ तो खा के देख जिंदगी में, तू यू आर ए गाय, एक बार थप्पड़ पड़ना चाहिए तुझे। तो ही वॉज देयर, वहां पे वो कह रहा है कि भाई मैं कॉन्स्टेंटली खड़ा रहा वहां पे, जो भी बोलता जाएगा मैं सामने हूँ। और उस बंदे ने उसको कुछ बोला ही नहीं, वो पीछे चला गया, वो डर गया उससे कि भाई ये तो अब तो जेन्युइनली ये है कि भाई झेल लेगा कोई चीज। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको कोई भी मार्शल आर्ट आता है, तो आप कॉन्टिन्यूसली, आपको ये लाइफ लॉन्ग आपका ये प्रोसेस हो जाता है कि या आई कैन बेयर, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और कोई मुझे दबा नहीं सकता नाजायज। Yes, yes, right. या संकेत। So yeah, Amitabh, I want to ask you one thing कि सब लोग तो चलो फुल टाइम मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते, राइट? इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते, और आजकल का लाइफ उतना ज्यादा है। बेसिक चीजें क्या है जो सबको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एटलीस्ट बी एबल टू गिव सम काइंड ऑफ फाइट? क्योंकि वो होता है ना कि कमजोर शिकार पे लोग ज्यादा प्रे करते हैं, तो वो Yes. कमजोर शिकार के लेवल से ऊपर जाने तक, एक बेसलाइन लेवल तक आने तक हम क्या कर सकते हैं? क्या चीजें जो हम लोग सीख सकते हैं, हमारे आर्सेनल में रख सकते हैं कि यार इतना तो आता है? Okay. So So basics of martial arts is like whenever a newbie or amateur come to us, we always start with punch. 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 Basic. Okay. People need Mhm. to learn like how to punch your hand.
it's not this, Okay. it's not this, it's this. Uh-huh. Hmm. This. Okay, Okay. Yeah. you have to save your thumb also. Okay, Hmm. so Okay. Uh-huh. the best way is this. Hmm. Okay. Mhm. Okay, Yeah. so people need to learn how to make a punch, then Hmm. how to Okay. give a punch. Yeah. Okay, Okay. so it's Mhm. like the basic is punch, then we shift to blocks. It's like if you are punching someone, you will तो ये definitely ऐसे get one in ये return. Okay, इस so अगर कोई रिटर्न में भी आपको मारेगा तो you need to learn, right? या कि या आपको Yeah. कैसे ब्लॉक करना है. So after punches, blocks, then after blocks, kicks, basic Mhm. kicks. Okay, Mhm. then defensive of kicks. It's like you are learning kicks. You learned 5 or 6 varieties of kicks, but you are just good in one. So आप Okay. सारे kicks तो at present नहीं मार सकते मार ना. ही नहीं सकते आपको तो हाँ. पता, Okay. हाँ, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें. और आपका एक ही किक परफेक्ट है, आप उस हाँ. हिट ऑफ द मोमेंट में वही किक मारेंगे. हाँ. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न डिफेंस आल्सो. सामने वाला भी अगर किक्स मार रहा है तो उसका भी डिफेंसिव आपको पता होना चाहिए. कोई आपको चोक Mhm. करता है तो चोक से कैसे बचना है, ये सारे टेक्निक्स भी होते हैं. बहुत निकलते सारे हैं. वैरायटी होते हैं बचने के, सेल्फ डिफेंस तो टेक्निक. पहले हम लोग एक सेकंड पंचेस की बात करते हैं. तो मुझे पहले ये बताओ, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पंचेस. एक होता Yes. है ये बॉक्सिंग के पंचेस, एक जो ताइक्वांडो के Yes. पंचेस मैंने सीखे हैं. ताइक्वांडो Yes. के पंचेस आर लाइक दिस स्ट्रेट. यस 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 यस. ये पंचेस होते हैं. Yes. अब क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग फॉर्म के क्या पंचेस होते हैं? और एक वो जो कराटे जो नॉर्मल कराटे वाला एक तो ऐसे वाला पंच मारते हैं सिंगल छोटा सा. हाँ, कराटे में क्या है, कराटे में इट्स मोर टच एंड गो. टच एंड गो इट्स लाइक जस्ट पॉइंट्स कलेक्ट करना है. ओके, टाइकोंडो में ज्यादा पंचेस का कोई नीड नहीं है. टाइकोंडो इज मोर अबाउट किक्स. ओके, पंचेस बहुत कम है. Kicks. सो टाइकोंडो में ज्यादा किक्स पे फोकस करते हैं. कराटे में पंच किक दोनों है क्योंकि पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. बट हमारे फॉर्म में, इंडियन फॉर्म, इसका जो स्पोर्ट्स फॉर्म है, इसमें पंचेस का कोई यूज ही नहीं है. हमारे इंडियन फॉर्म में स्वॉर्ड एंड स्पीयर यूज होता है. ओके, एंड किक्स यूज होता है ज्यादा से ज्यादा. पंचेस, सारे पंचेस सेम होते हैं, सिर्फ नाम अलग होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है. एंड सबसे बेसिक से किसी को सिखाना है आपको, कोई फॉर्म मत सिखाओ. यू हैव टू स्टार्ट विथ मिडिल पंच, चेस्ट लेवल, अपर पंच, फोरहेड लेवल, लोअर पंच, एब्डोमेन लेवल, Okay. बेसिक, डन. अच्छा, तो सिंगल पंचेस, डबल पंचेस. ये जो उसके होते हैं बॉक्सिंग के पंचेस, तो कहते हैं बॉक्सिंग के सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल ऐसे ऐसे क्रॉस में चलते हैं पंचेस, हुक्स. हाँ, तो वो कौन से, लाइक विच वन इज द बेस्ट, लाइक कौन से पंच सबसे बेस्ट होते हैं, कि स्ट्रेट वाले ही या ऐसे हुक वाले टाइप के? नहीं, मेरे हिसाब से हुक से बेटर अपर कट है. अपर कट, मेरे ये लिए Upper. अपर ऐसे कट करके ये. या यस नहीं यस, नहीं इट्स नहीं. मोर This बेटर. नीचे से ऊपर. नीचे से, नीचे से ऊपर. हाँ. हाँ, तो ये आया ना ऐसे करके, ऐसे गया ये ऊपर, मतलब Yes, यहाँ yes. से अगर तो मैं यहाँ पे upper हूँ cut- तो ये गया. हाँ, या अच्छा, अपर कट ये सब वाला, कुछ ज्यादा ये effective यू है. आर सेइंग Yes, दिस. ये वाला. Yes, ये वाला. ओके ओके ओके, ये वो वाला. या. ओके. अपर कट ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हाँ. क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक ब्लॉक टेक्निक होता है ये, दोनों हाथ से ऐसे. ओके, तो आप राइट से मारेंगे तो ब्लॉक कर लेगा, लेफ्ट से मारेंगे तो ब्लॉक कर लेगा, सेंटर मारेंगे तो भी ब्लॉक कर लेगा. अपर कट क्या है, इसको आराम से क्रॉस करते हुए अंदर जा सकते हैं दोनों हाथ के बीचों से. यू कैन फाइंड अ गैप एटलीस्ट. ब्लॉक नहीं Okay. होता. हाँ हाँ. ओके ओके Okay, see, Amitabh, one thing I want to say कि अभी सब बात कहाँ पे आ जाती है, प्रैक्टिस के ऊपर, right? So Yes, yes, should yes. we recommend everyone to have a punching bag at their place, जो वो रोज 5 minutes 10 minutes उनको प्रैक्टिस करे, कि उनके पंचेस भी सॉलिड हो जाए, एक्यूरेसी आ जाए थोड़ी सी, और मूवमेंट सीख जाए, ऐसा कुछ? No need. You don't need any such kind of punching bags to learn practice, to learn Okay. punches, because it's like if you are really, dedicated, you want to learn good punches, you don't need anything. You just stay in Shadow one boxing. position. Yeah, just stay in one position, which is called punching position. You just have to Okay. bend down, back straight, okay, and you just practice all the punches, everything, upper, middle, lower, double punch, single punch, triple punch, Okay. blocks. You don't need पंचिंग बैग. आपको अगर पंचेस हार्ड करना है तो आपको ऑफ कोर्स सब बात है, पंचिंग बैग का जरूरत है. बट पंचेस अगर फास्ट नहीं होंगे ना तो इफेक्टिव भी नहीं होते. ओके, सो फास्ट पंचेस करने के लिए आपको पहले खाली एम्प्टी स्पेस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके बाद आपको अगर पंचेस में दम लाना है तो पंचिंग बैग पे ट्राई करिए, और यू कैन मेक योर ओन. देयर आर मतलब डिफरेंट shadow वैरायटीज boxing ऑफ आपको पंचिंग पहले बैग. करना है. हाँ हाँ, बेसिक यही है, आपको पहले परफेक्ट होना है मूवमेंट्स में. Okay. Okay, okay. So ये पंच का हो गया. किक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन सी किक हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं सबसे पहले? किक्स के लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किक बैलेंस है. If you Balance, don't know okay. how to balance while kicking,
then it's waste. Okay, आपने आप खुद ही किक गिर मार दिया जाओगे। सामने वाले बंदे को और उसको लगा, लेकिन उसने भी रिटर्न में कुछ किक वगैरह मार दिया, या फिर आपको धक्का मिला, एक जर्क आता है ना, तो रिटर्न आप जाएंगे पीछे की तरफ। तो जब आप किक मार के पीछे की तरफ जा रहे हैं, इफ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योरसेल्फ, आप खुद गिर जाओगे, उसके बाद सामने वाला बंदा भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आप ओके किक मार रहे हो तो इस तरीके से किक मारो कि किक मारते ही आप पोजीशन में रेडी हो जाओ दोबारा किक मारने के लिए, दूसरा मारते ही तीसरा। किक बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप पहले किक बैलेंस करना सीखिए, उसका वेराइटीज ऑफ किक्स प्रैक्टिस करिए, स्ट्रेचिंग करिए डेली बेसिस पे, उसके बाद आप पंचिंग बैग्स और किकिंग पैड्स ले लीजिए। नहीं तो इस पीरियड में मतलब मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए आपको पंचिंग पैड पे, किकिंग पैड पे या किकिंग बैग पे किक करने के लिए। 6 मंथ से पहले यू आर नॉट एबल टू। अच्छा, जैसे ओके एक सो कोई मेरा पर्सन है एक उस, से हाँ एक सेकंड अमन, कि फॉर किक्स हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि जैसे कि 15 के एक एक सेट रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हुक किक हो गया, फुल स्विंग किक हो गया। हम ये किक्स की टेक्निक देख लेंगे। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग सम वीडियोस ऑन योर यूट्यूब एंड वी हैव दिस बेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड पीपल हु फॉलो अस, सो वो लोग वहां पे देख सकते हैं। सो लाइक दे विल बी एबल टू सी द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द किक्स एंड उसका 15 का वगैरह सेट बना के रोज वो प्रैक्टिस करके एटलीस्ट 1-2 मंथ वो करके वो अपने आर्सेनल में वो चीज ला सकते हैं। तो मसल मेमोरी एक बार बन गई तो वो लोग फिर उस चीज को यूटिलाइज कर सकेंगे, उनके इंस्टिंक्ट्स में वो चीज आ जाएगी जैसे वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। एग्जैक्टली, या या अच्छा, ये कुछ ये जो मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है, पहले तो आप इंडियन वाले मार्शल आर्ट्स बताओ कि कौन कौन से मार्शल आर्ट्स हम लोग जो इजीली सीख सकते हैं। मतलब इजीली माने कि जैसे फॉर एग्जांपल आई जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी, देयर आर नॉट लाइक गुड मार्शल आर्ट कोचेस ओवर हियर। तो आई डू वांट टू कंटिन्यू, अर्लियर लाइक व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू डू इट, बट नाउ आई डू वांट, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है करने का। तो देयर आर बस जिम्स एवरीवेयर जिम्स, तो वही कर सकता हूँ, या मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे ऑलरेडी पुरानी चीजें याद है वो करता हूँ। तो एक पर्सन को कंटिन्यू करने के लिए कौन सा इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है जो कंटिन्यू कर सकता है विदाउट कोच? as I said before also, it's like it's a way of life. आप जो भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हो ना, परफॉर्म करते हो ना, यू आर लाइक यू आर लिविंग इट। आप अगर इसको डेली बेसिस पे नहीं करोगे तो आप खराब हो जाओगे, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओगे, ठीक है, परफेक्ट नहीं हो पाओगे। सेकंड चीज इज लाइक आप जितना सीखोगे ना उतना आपको नया सीखने को मिलेगा। आप अगर प्रॉपर किसी 5 डन 7 डन ब्लैक बेल्ट ट्रेनर के अंडर में नहीं होगे, जिसने नहीं भी तो 10 साल 12 साल 15 साल दे दिया है लाइफ का सीखने में, सिर्फ सिखाने में नहीं, उन लोगों के अंडर में नहीं होगे तो आप पहली बात परफेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको जस्ट बेसिक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इफ यू आर आस्किंग, आप कोई भी मार्शल आर्ट सीखिए, ठीक है। हम लोग किसी का एंटी नहीं बोलते, बिकॉज वी आर स्पोर्ट्समैन, वी रेस्पेक्ट एवरी स्पोर्ट्स, ओके। सो आप कोई भी मार्शल आर्ट सीखिए, आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। आपने अगर मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर अगर ट्रेनिंग लिया है, आप उसी चीज को लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव चीज है, क्योंकि आप जब कुछ नया नहीं सीख सकते, जो सीखा है उसको ही तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना खुद से। इट्स व्हाट योर विल। या बट अभी क्या ना, मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेशन इस चीज से, बॉक्सिंग को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेशन आया, और एक कलारी पैतू को लेके, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो उसका कलारी पैतू, हाँ, तो वो करने का बहुत मन है। तो यहाँ पे मैं आई एम इन नॉर्थ, तो यहाँ पे ज्यादा कोई सिखाता नहीं है। साउथ में इट इज क्वाइट फेमस। You have to contact Delhi Kalaripattu Association. ओके, तो वो तो ज्यादा भी यहाँ पे फेमस नहीं है ना, सारे स्मॉल टाउन या डिफरेंट सिटीज में ज्यादा नहीं होता। कुछ वीडियोस के थ्रू सीख सकता है कोई पर्सन, क्या लगता है आपको? ऑनलाइन क्लासेस? हाँ, बिल्कुल सीख सकता है, बेसिक्स सीख सकता है। आजकल तो हर चीज वर्चुअल हो रहा है, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है आपको जाके ग्राउंड में ही सीखना पड़ेगा। इफ यू आर रियली डेडिकेटेड, आप वीडियोस के थ्रू भी सीख सकते हैं, बेसिक सीख सकते हैं। आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक आपके पास कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं है। एक पार्टनर बहुत जरूरी है। कलरीपयट्टू इज अ काइंड ऑफ इवेंट गेम, यू नो, डेमो इवेंट गेम्स। इट्स लाइक आपको स्वॉर्ड स्पीयर लेके सिंगल हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यू नीड अ पार्टनर टू परफॉर्म, यू नो। आपका खुद का भी आपको मूव्स पता चलेगा कितना फास्ट है सामने वाले बंदे से। तो आपका आपका मार्शल आर्ट का फॉर्म का नाम एक सेकंड में भूल गया। थंग टा। तो थंग टा और कलारी पैतू में क्या फर्क है? थंग टा और कलरीपयट्टू में बहुत सारा फर्क है। सबसे पहला चीज, थंग टा is in under, you know, sporting events. It's like थंग टा का फेडरेशन है, स्पोर्ट्स फेडरेशन। इट्स नॉट जस्ट लाइक ये फेडरेशन बना गया जस्ट अपना कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए। ये फेडरेशन बना गया मणिपुर का कल्चर को प्रमोट करने के लिए, थंग टा को स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए,
25 ईयर से फेडरेशन चल रहा है, सिल्वर जुबली हो गया है. वी गॉट रिकॉग्निशन अंडर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आल्सो. ओके, अंडर सेक्शन इंडियन इंडिजिनियस मार्शल आर्ट्स, इंडिजिनियस गेम्स. ओके, सो बट बाकी आप गेम्स का बात करेंगे, कलरीपयट्टू, गटका, ये सारी चीजें, मतलब इसमें इन लोग के पास भी रिकॉग्निशन है, ये लोग भी डेमो इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स करवाते हैं, बट जो क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग वगैरह होता है ना, वो सारी चीजें नहीं है इनमें. तो इनमें सिर्फ डेमो ये इवेंट्स थंग टा में आपके बिना स्वॉर्ड के भी फाइट्स होती हैं मेन स्पोर्टिंग इवेंट में, या स्वॉर्ड होती है? हाँ, स्वॉर्ड मतलब स्वॉर्ड नहीं होता है, होता क्या है, एक स्टिक होता है. हाँ. ओके, स्टिक के ऊपर लेदर कवरिंग होता है. लेदर कवरिंग होता है स्टिक के ऊपर, नीचे से हैंडल होता है, सब कुछ हैंडमेड होता है, कुछ रेडीमेड नहीं है. हैंडल में एक स्टील जैसा कुछ लगा रहता है. उस स्टिक से आप सामने वाले को, जो इसने चेस्ट गार्ड पहना है, फेस गार्ड पहना है, उसे हिट कर सकते हैं. ओके, अच्छा. आप उसको हिट कर सकते हैं और उससे आपको पॉइंट्स मिलेगा. एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट्स, एक एक हिट का. ओके, ये हो गया स्टाइल 1. स्टाइल 2 में क्या होता है, आप जो चेबी के साथ, चेबी बोलते हैं उसको, जो स्वॉर्ड यूज होता है स्पोर्टिंग इवेंट में, उसे चेबी बोलते हैं, और जो ढाल होता है उसे चेंगुई बोलते हैं. ये मैतेई वर्ड है. मैतेई इज अ लाइक, होता है ना, कास्ट ऑफ मणिपुर, उनका वर्ड से ये. तो ये लोग वो यूज करते हैं स्टाइल 1 में. स्टाइल 2 में क्या होता है, वो लोग शील्ड हटा देते हैं, चेबी एज अ स्वॉर्ड, एंड किक्स, यू कैन यूज किक्स, देयर इज नो पंचेस अलाउड. Okay. So generally people are not aware about this Thang Ta martial art, Indian martial art. तो मैं एक बार सबको दिखाना चाहता हूँ, ये सारे लोग भी देख पाए ये किस टाइप का मार्शल आर्ट है. I would like to share the screen. We can talk. This is demo event. They are doing Thang Hai Ba. It is known as Thang Hai Ba. Yes. Okay. This is a demo event. Okay. And it is practiced by each and every Meitei people of Manipur, because it's their culture. It was before a dancing form. Okay. Their forefathers converted it into sports. But they are having like proper real swords. Yeah, proper real swords. These are real swords. But जो sports में use होता है, मैंने बोला ना, stick use होता है. अच्छा. So this is the warrior race of people or what? What is their culture like? It is a like Meitei people are like, they used to worship God, and they used to celebrate like this. They used to perform this sword events, in their kind of, what we say, festival. This is a festival for them. Okay, and this is like praying. This is what you were telling me. Yeah. ये वाला sword के साथ में. हाँ, ये sports है. अच्छा. Kicks अच्छी हैं भाई. सीधा फेस पे किक मार रहे हैं. Okay. So you have participated in such kind of events? Yes, I have. अच्छा, तो इसमें belts मिलती हैं फिर? Yes, belts मिलता है. अच्छा, तो like क्या होता है? You're a general secretary, right? Of this martial art only. Of West Bengal state. For governing body of Thang Ta. अच्छा. That's a big achievement, yeah. Congratulations for that. Thank you so much. तो इसमें आप आप कौन से कितने बेल्टर हो? क्या कौन सा कलर है बेल्ट का? मेरा एक्चुअली, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया थंगता में. मेरे सीनियर, मेरे गुरु वगैरह तो अराउंड 25-20 इयर्स दे चुके हैं. मेरा तो सिर्फ 5 इयर्स हुआ है. मैंने ब्लैक बेल्ट अचीव किया, फिर एडवांस ब्लैक बेल्ट अचीव किया है, और अभी मेरा और आगे का थंगता का पढ़ाई चल रहा है. लाइक आई हैव टू अपीयर फॉर फर्स्ट डेन, सेकंड डेन. अच्छा, फर्स्ट डेन. So you're basically very passionate about this thing, right? And yes, what vision do you have for this sport in future in India? Where do you see it going? We are first focusing on, the games should come under All India University Games. Then already it is in Khelo India, and we are applying for national games as well. We want to see a Thangta in Asian Games. Like Kho is already there, so we are also planning for the same thing. Okay, you want to get it on the map. Yes. This is like ये भी Indian martial art हो जाता है कलारी पे है तो. Yes. ये विद्युत जामवाल जो करता है, right? Yes, उन्होंने भी सीखा है. अच्छा.
ये भी इट लुक्स लाइक दोनों का वाइब वही है कि फॉर्म जो है ना थोड़ा डांसिंग फॉर्म है, राइट? हाँ, डांसिंग फॉर्म ही है, हाँ लेकिन ये मोर है, इट्स लाइक ये लोग मतलब कलरीपट्टू भी आर्ट है वहाँ का, बट हम्म, मणिपुर का क्या है ना, ये कल्चर है, लाइक इट्स लाइक एवरीवन हैव टू डू इट। आप अच्छा, मतलब हैव टू मैथई डू हो तो इट। आपको सीखना ही पड़ेगा, या आप मैथई हो तो आपको सीखना पड़ेगा। there is a very कलरीपट्टू और strange केरला का connection. क्या है, आपकी मर्जी है, हम्म। Mhm. आपको सीखना है नहीं सीखना है। Okay. अच्छा अच्छा, There is a very ये strange दिस इज द connection प्रॉपर लॉक। with ये वाला लॉक अगर कोई करे ना बड़ा मुश्किल हो जाता है छुड़ाना। इसको मास्टर इसका लॉक इसका बोलते हैं ना, इसका I भी guess. तोड़ है, इसका भी तोड़ है, बहुत सारा इसका नीचे अनलॉक टेक्निक्स है। नीचे बैठते हैं ना झटके से, I guess, या यस फिर यस यस, हाथ ऊपर रोल करके ओवर नीचे करते हैं, बैठते हैं, हाथ ऊपर। नीचे हाथ ऊपर बैठते हैं करके झटके नीचे से. बैठते हैं, हाँ। या फिर एक पाँव पीछे लाके सामने वाले का पाँव पकड़ के उठा सकते हैं उसको आराम से। सी अब या जैसे एंड उसको कितना लेग लॉक भी कर सकते फ्लेक्सिबिलिटी हैं देखो, उसके यस हिसाब से. फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितना एकदम से बंदा उसके ऊपर चढ़ गया। अब यस, जबकि साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा हम लोगों के साइज में उसमें डिफरेंस नहीं होगा इतना, बट ऐसे ही चढ़ यस, रहे हैं ना तो ऐसा वी इट्स ऑल कैन नॉट इवन सेटअप, थिंक। सेटअप। ये जो डेमो इवेंट्स होता हाँ है, ये हाँ सेटअप हाँ होता है, हाँ ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने ये सेम चीज थाउजेंड्स बार प्रैक्टिस किया होगा। ये सब अच्छा। सेटअप ओके. होता है, ये सारे हम लोग भी डेमो इवेंट्स करवाते हैं, बच्चों हम्म। को सेम मूव, सेम टेक्निक, सब चीजें हाँ उनको हजार हजार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके बाद ये परफेक्ट होते हैं। पहले वुडन स्टिक से कराई जाती है, वुडन स्टिक से परफेक्ट होने के बाद इनके हाथ में असली स्वॉर्ड दिया जाता है। So, Amitabh, this is very functional in the real street fight as well, right? So, इट्स वेरी फंक्शनल यार। मतलब we don't have to always go to Krav Maga or something like that to learn street fight, because उनकी नो नो, theory वो थी कि to make it functional, to make something very effective, we have designed Krav Maga. But this can also be, used in street fight as per as your experience, right? Yes, yes. Krav Maga is more popular because they are doing right marketing. Okay, it's all Yeah, about yeah. business. Martial arts Uh-huh. also has their own industry. It is a big Okay. business. Okay, like I have seen people, learning lakhs and earning lakhs and lakhs in a month from martial arts Uh-huh. only. You will see Uh-huh. professional clubs in Mumbai. People are Uh-huh. getting trained there. Krav Maga, Jiu-Jitsu. Then Jiu-Jitsu, there are yeah. many forms: grappling, MMA. Yeah. These are Muay Thai. industry. Yeah, Muay Thai. If you do the right marketing, people will know more. That's it. And basically in UFC and all that, it is more used more often. So like people know these terms very easily. They remember. The interesting thing about it is the connection between dance and this combat fight. There is a Yes. guy called Tony Ferguson. He also uses the same thing. He gets into the dancing stance while fighting, makes it very awkward for the opponent to predict him. Yes. Yes. Right. इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबल हो तब तो कुछ कर पाओगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। And मतलब आप अगर फिट you're नहीं हो, taking it आप very अगर lightly. yes, You're not too serious about it, not too scared, and you are able to be creative and mix it up and throw a punch and then duck down, something like that. first thing is like I always advise every individual, आप अगर ऐसे सिचुएशन में पड़ रहे हो, avoid as much as you can. सॉरी बोल के हट जाओ। Why? या सबसे पहले इट्स लाइक आप सिचुएशन देखो ना, आप देख रहे हो कि या यहाँ पे सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है या मैच होने ही वाला है, तो आप सिचुएशन अवॉइड करो, चलते बनो। इफ आपके थोड़ा सा इग्नोरेंस से अगर नहीं होता है फाइट, तो छोड़ दो, चलते बनो। अमन, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई स्ट्रीट फाइट हम प्ले कर सकते हैं क्या? So we can see कि what we can do in such situation. Yes. लाइक ये वाला देखें, 1 versus 2 ऐसा कुछ स्ट्रीट फाइट देखते हैं। ये प्रॉपर टेक्निक्स पहले मैं बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करता था, ये सारी क्या क्या चीजें करनी चाहिए। स्ट्रीट फाइट 1 versus 2 ऐसा कुछ कर देना। हाँ, ये देखें, सेल्फ डिफेंस टेक्निक 7 गोल्डन रूल्स। ये तो ये फाइट सिनेरियो चाहिए था। ये ये दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो लगाया मैंने। चलो इसमें देखते हैं, शुरू से देखते हैं। अमिताभ, कैन यू ब्रेक अस डाउन कि कैसे, मतलब किस तरह से इस बंदे ने हैंडल किया, किस तरह से बेटर किया जा सकता था और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए। एक सेकंड, ये शुरू होते से ही
शुरू से लगा दे एकदम। बिल्कुल शुरू से लगाया, दिस इज द स्टार्टिंग नाउ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। अभी ये रेड वाले को शायद मार रहे हैं सब। हाँ हाँ। ये ग्रुप फाइट है यार। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। रेड वाले के साथ फाइट हुआ हाँ बाकी लोगों का, बाकी लेकिन वो रेड भी वाले ने एक वो भी अलग कर रहे हैं फाइट। यस यस यस, अच्छा हाँ। रेड वाले ने एक्चुअली क्या किया, बहुत बढ़िया इसने दिमाग लगाया, पीछे हटते हाँ हटते हिट किया, मतलब वो अपने हाँ आप को बचा ओके भी रहा है, सेल्फ डिफेंस कर हाँ भी रहा है और हिट भी हाँ कर रहा है। हाँ हाँ ओके ओके हाँ तो हाँ ये इसको बहुत एडवांटेज हो गया। ये देखिए इसका मूव बार बार ये पीछे हट रहा है, बैक ऑफ हाँ कर रहा है और ये हिट कर हाँ रहा है जो भी बंदा हाँ सामने आ रहा है। इससे क्या हाँ हो रहा है, लोग सेपरेट हो जा रहे हैं, वो हाँ लोग हाँ एक टीम बन के इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक तरीके का स्ट्रेटजी है जो बहुत हाँ सक्सेसफुल है। गैप दिखा रहा है देखिए 2 और 3 लोगों के बीच में, हाँ और ओके जो रेड वाला बंदा है वो बार बार पीछे हटके आराम से हिट कर रहा है एक बंदे को, हाँ और सामने वाला ओके ब्लैक वाला मार खा रहा है। ओके और ब्लैक वाला भी हिट कर रहा है, एक आधा हिट तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन रेड वाला एटलीस्ट फाइट कर रहा है कंटिन्यू, यहाँ से फाइट हम्म करते हुए जाएगा हाँ देखिए। फ्लॉयड मेवेदर जैसा। हाँ देखो पीछे हटते हटते तीनों बंदे उसके ऊपर चढ़ गए, लेकिन वो पीछे हटते हटते हाँ बढ़िया डिफेंस कर ले रहा है वो। नहीं वो सही भी ट्रेंड है एक क्या एक बंदा? अलग अलग भी फाइट कर ही रहे हैं, ये भी एक हाँ मतलब दो दो फिर के इनका साथ भी एक इन आ दो रहा है। बंदों का। हाँ हाँ लेकिन इसका सबसे अच्छा है मूवमेंट, बहुत अच्छा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली यस मूवमेंट यस आ रहा है इसका। यस। स्ट्रक्चर देखो, डिस्टेंस, अभी दोनों में दो दो बंदे इकट्ठे होके मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी प्रॉपर इसकी लग नहीं पा रही है किक यार। और वही ना, स्ट्रीट फाइट जब होती है ना तो फिर सारे हाथ पैर ऐसे सीधा सीधा मारने ही लग जाते हैं, कोई ध्यान सा नहीं लगता। हाँ यस यस। लोगों का स्ट्रीट फाइट में स्टेमिना भी नहीं आदमी चलता। दिमाग से नहीं सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता, आदमी गुस्से शरीर से। से सोचता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रीट फाइट में आप किसी बंदे को सिंगल पंच में नॉक कर सकते हो अगर आप दिमाग से सोचोगे। आप अगर ध्यान दोगे ओके अच्छे से कि क्या है, हाँ वो बस गुस्से गुस्से में हाथ पांव चला रहा है, अरे आप बस उसका एक वो आधा पंच कुल्हाड़ी ब्लॉक उठा करके। लाया एक्स लेके आगे भाई वो। हाँ अब आओ। आखिर में रेड वाला डोमिनेट हो ही गया ना उन लोगों हाँ पर। हाँ। तो एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे, क्या अपनी गाड़ी में कोई वेपन रखना चाहिए? नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप किसी भी चीज को वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपनी कीज को पंच के बीच में डाल के किसी को भी अच्छा खासा पंच मार देंगे तो बहुत अच्छा इंजर्ड हो जाएगा। आपके ओके। पास जो भी चीज है आप उन चीजों को वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ वेपन ऑलवेज कैरिंग विथ यू, यू नो। एक एक क्वेश्चन था अमिताभ कि व्हाट शुड बी योर माइंडसेट व्हाइल यू आर इन अ फाइट। जैसे फॉर एग्जांपल माइक टाइसन के फाइट्स के पहले उसका जो कोच होता था कस डमाटो, ही यूज्ड टू hypnotize him and tell him कि you want to punch through him, you don't want to punch him, you want to put a hole in his face and stuff like that. So it was a very aggressive mindset. ठीक है? So and it was effective as well and he gave a lot of credit for that. So ये चीज कितना हमारा होता है, क्योंकि हम जैसे लोग सोचते हैं कि यार मैं डिफेंड कर लूं अपने आप को काफी है, बट सामने वाला जो अटैकर होता है, जनरली जो एग्रेसर होता है, he wants to destroy you and that's why these people win more often. So what should be our mindset when we are in a fighting situation, or generally when we think about fighting someone or defending ourselves? Should it always be avoiding and defensive, or when we are in the situation we should be aggressive towards the opponent and we should look for hurting him? Okay, it's like first it depends totally on situation. First you Okay. need to notice, you know, situation is safe or not, whether there is more than one person. Okay, if Okay. there is more than one person, try to avoid. If they Okay. don't wanna, you know, like listen to your talk and they want to do a mess, then you have to go on. Okay, you can't avoid the situation, you can't run. ठीक है, अब ज्यादा बंदे हैं, 10 से ज्यादा बंदे, 8 से ज्यादा बंदे हैं, तो सबसे पहले चीज आपको भाग जाना चाहिए। आपका मेंटली होना चाहिए कि पहले कैसे सेल्फ डिफेंस करूं, उसके बाद जब आप जानते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं तभी ना आप अटैक करेंगे। जब आप जानते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस ही नहीं कर सकते तो आप अटैक करने का सोचिए मत। यही माइंडसेट रखिए कि मैं सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, 8-10 बंदे हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल, तो इससे बेटर है कि सेल्फ डिफेंस करता हूँ, कल्टी ले लेता हूँ, भाग जाता हूँ, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बट इफ इट्स लाइक नहीं ठीक है, एक बंदे दो बंदे हैं, आप भाग भी नहीं सकते, सिचुएशन अवॉइड नहीं कर सकते, देन फाइट होना ही है, तो सेल्फ डिफेंस करिए सबसे पहले, अपने आप को बचाइए, जैसे वो रेड जैकेट वाला बंदा कर रहा था, बचाते हुए देन अटैक, सेल्फ डिफेंस देन अटैक। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा से कहते थे कि अगर कोई लड़ाई हो जाए कोशिश करो अवॉइड करो, अगर हो जाए तो एक बंदे को पकड़ के पीट दो।
ये हमारे ताइक्वांडो में सब कहते थे। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपको क्या लगता है कि सपोज 50 बंदे आ रहे हैं, सपोज तब तो हम भी भाग जाओ, कॉलेज में पढ़े, तब तो कॉलेज में भाग जाओ, हम भी कॉलेज में पढ़े, ठीक पता है। है। तो वहां पे ये सिचुएशन अप्लाई होगा, आपने एक बंदे को पकड़ के पीट दिया, वो 50 बंदे बैठ के देखेंगे? ठीक है 10 बंदे और देख लेंगे, लेकिन 30 बंदे आ ही जाएंगे। तो ये हाँ। सारी बातें बोलने वाली हैं। हम्म। रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा बहुत कम होता है, ये कोई हम्म। साउथ इंडियन मूवी नहीं है कि हम्म। कैसे आप अकेला पूरा फिजिक्स को पूरा दांव पे रख ये के वो कुछ भी कर देते हैं। यस यस यस, दिस इज रियल लाइफ, एनीथिंग कैन हैपन, तो अमिताभ एक डोंट चीज बिकम अ थी कि विक्टिम जैसे एटलीस्ट। हम्म। जैसे एक मिलिट्री पर्सन था, यूएस मरीन था, एंड उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो लोग पेट्रोलिंग पे जाते थे तब बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती थी उनको कि यार कहाँ से अटैक होगा, कहाँ से। सो फिर उसने देखा कि उसके जो ये थे, उसके जो ये थे कलीग्स थे, उनको एक उसने मोटिवेशन दिया कि ऐसा मत सोचो कि आप लोग डिफेंसिव है, आप ऐसा सोच के जाओ कि जैसे कि आप उनको हंट डाउन करने जा रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि दुश्मन कहाँ छुपे और मैं मार रहा हूँ। सो शिफ्ट फ्रॉम बीइंग डिफेंसिव, हैविंग दिस डिफेंसिव माइंडसेट कि यार कोई पीछे से आके अटैक करेगा और मैं डर रहा हूँ, and have this mindset, aggressive mindset कि I'm looking for a bad guy and I'm going to hunt that down. So fighting में ये जो shift होता है कि यार okay I'm being defensive but at the same time as soon as get the chance I'm going to knock down this person. So does that help and is it important and how much of a value it has? यस ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, बिकॉज इट्स मेकिंग यू मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, पहले मैं अपने आप का बचाव कर लेता हूँ, उसके बाद Yeah, अगर मैं बच गया या मैं सेफ हो गया, then definitely I can attack that person. एंड अटैक exactly. करने के लिए तो यू नीड टू लर्न बेसिक्स, इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ओनली, आप उससे बच के भी आप क्या ही करेंगे? नहीं, मैं दोबारा अमिताभ से सपोज अगर एग्री कर रहा हूँ इस चीज पे, जैसे कि रियलिस्ट बन के चलो पहले, कि जितने अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तब तो ज्यादा सोचो ही मत। और जैसे कहते हैं ना, दूसरों के एरिया में आके ना ही भिड़ो जाके उससे। कोशिश, अगर यस वो कुछ गलत भी कह रहा है आप साइड में निकल आओ, क्योंकि एट दैट मोमेंट आपका सर्वाइवल जरूरी है। बाद में सिचुएशन को देख सकते हैं। वन ऑन वन है और आपको लगता है आप जीत सकते हो, तब तो लड़ाई करो। ये आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है, उसमें सबसे पहले लड़ाई का फर्स्ट नियम, वॉर का फर्स्ट रूल ये है कि भाई जब आपको लगता है आप जीत सकते हो तभी लड़ाई करो, अदरवाइज करो ही मत। अगर अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है तो भाई साइड हो जाओ, पहले खुद पावरफुल बन जाओ तब सोचना उससे लड़ने का। आर्ट ऑफ वॉर से याद आया, थंगता का एक और नाम है, इट्स लाइक हुएल लैंगलोंग। हम्म। Okay, तो हुएल लैंगलोंग का मतलब ही होता है नॉलेज ऑफ वॉर। अच्छा। knowledge of इसके war. ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हम्म। ओके, Okay. द वर्ल्ड ऑफ थांगता बोल के। Okay. ओके, सो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, आपको वहाँ पे हर चीज दिखेगा, हमारे ग्रैंड मास्टर ने कैसे एक्सप्लेन किया है, क्या है नॉलेज, कैसे गेन किया जाता है, क्या है ये लाइफ में, आपको कैसे इट्स अ वे ऑफ लाइफ सिखाता है, आपको कैसे जीना है जिंदगी, कैसे रेस्पेक्ट करना है नेचर का, एवरीथिंग, हम्म। बहुत सारी चीजें। अच्छा, कि इसके अलावा दो मार्शल आर्ट की बातें हमने करी हैं, उसके अलावा कोई और एक और मार्शल आर्ट की, एमएमए की बात करें क्या? या श्योर। अंकित इज अ फैन ऑफ एमएमए, तो हम किसका वीडियो Big लगाएं? time. Uh, this अपना Fedor, Fedor. एक सेकेंड। This Fedor व्हाट डू यू fight armbar. फॉलो? was the best Fedor fight. armbar. फेडोर आर्म बार कर, मतलब वो जिस तरह से हर चीज सिचुएशन में आर्म बार लगाता था ना, तो दैट इज समथिंग वर्थ Spelling, what is the spelling of Fedor? एफ ई F डी ओ आर, एफ ई, Fedor? फेडोर आर्म बार, Fedor आ रहा है, देखते हैं। आर्म बार, आर्म बार, Fedor, no. AMBAR, Ambar, आर्म बार, आर्म, आर्म. AR. Who is this guy? Fedor, like यही है बंदा, I guess. एक काम कर, फेडोर वर्सेस जायंट लगा दे, फेडोर वर्सेस जायंट लगा दे. This one? Uh, 2 yeah, minutes. the guy is 7 feet tall, some 7'2", I guess.
बहुत हैवी है भाई। सी ऐसा इंटिमिडेट कर लेते हैं, कोई हैवी पर्सन होता है ना वो आपको पूरा ही कैप्चर वेट सा डाल कर रहा है लेता है। पूरा, और वेट हाँ डाल दिया उसके ऊपर पूरा। हाँ। अब ऐसे अमिताभ रियलिस्ट, विल से समथिंग अबाउट इट हाँ कि हाँ, ये बेसिकली क्या है ना, वो जाइंट बंदा जो है मूवमेंट हाँ में उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा स्पीड पंचेस चला सकता है, हम्म, ब्लॉक्स कर सकता है। सो इसलिए इसने शायद सोचा है कि क्या कहते हैं, मैं इसको लॉक करके नीचे गिरा देता हूँ, एक बार ये हेल्पलेस हो जाएगा, उसके बाद आई कैन अटैक ओवर हिम। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू ये डू। देखो, ये आम बार जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्या लोगों को क्या पता क्या, नहीं होता। जैसे समझा नहीं मैं, क्या चीज था, फिर अभी से करूं क्या? नहीं नहीं ठीक है, अभी फिर से मारेगा वो। अच्छा, अब मैं ऐसे वाले सिचुएशन में अगर मेरी सामने सामने ऐसे लड़ाई होती है तो मैं, एक पुश किक होता है ताइक्वांडो में, हम लोग पुश किक बोलते थे, तो मेरा यस एक यस। गो टू है कि आई विल जस्ट डू द पुश किक। आगे बंदा जब थोड़ा सा गिर जाएगा या कुछ भी करके उसके लेग पे किक मारना, उसको ऊपर से कैप्चर कर लेना, दिस इज माय गो टू ट्रिक। जो भी मेरी कुछ लड़ाइयां हुई हैं जिंदगी में, जो विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ। क्या यार, हैवी कितना है ये, दबा लिया बंदे को। अब देखना वो कैसे करता है। You guys follow what? UFC One Championship? UFC, बेलेटोर, Okay. लुक एट द आर्मबार मैन, लुक एट द ब्यूटी। अच्छा खत्म, खत्म। अच्छा, ये रियलिस्ट सिचुएशन में अब अमिताभ ये बता यार, अगर सच्ची में स्ट्रीट फाइट ऐसे पर्सन के साथ हो जाए तो मुझे नहीं लगता जीत सकता है कोई ऐसे। इतने ज्यादा डिफरेंस है दो लोगों में, क्या लगता है जीत सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स जीत सकता है। आपको जीत सकते कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग अच्छा होना पड़ेगा, आपको टेक्निक्स पता होना चाहिए कि वीक 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 पॉइंट्स क्या होता है। कोई भी कितना भी हम्म जॉइंट हो, सबका बॉडी में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होता ही है, हम्म सबको मालूम है। हम्म जैसे कि एक ओके वीक अभी तो, पॉइंट हो गया गला, दूसरा हो गया नोज, तीसरा हो गया ये स्टर्नम, जहाँ पे खत्म तो होता है उसके नीचे वाला पार्ट। ये अमिताभ, सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि हाँ। ये हमको बेसिक चोक्स कौन से पता होने चाहिए? एक चलो कमोरा हो गया, आर्म बार हाँ हो गया, और रियर नेकेड चोक हो गया, ठीक है। सो यस। और या अपने फिर को ये भी गिलिटिन नहीं हो गया। पता संकेत, पूरा बताने दे, हम भी सीखें क्या है, कौन हाँ कौन सा एक चौक है हाँ, ये, सो एक एक करके। ये गिलिटिन हो गया। सो ये सारे जो चोक है, ये पहली बात तो कैसे सीखे, और उसका थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट ये बेसिक चोक्स जो है, चार चोक्स या चार पर और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो उनका किस तरह से सीखे और क्या टेक्निक क्या होती है? नहीं, बेसिकली आई एम सेइंग यू, हम लोग के फॉर्म में चोक्स वगैरह नहीं होता है। ओके। ओके ये बेसिकली चोक्स वगैरह ग्रैपलिंग जिujutsu एमएमए में आता है। एमएमए इज काइंड एमएमए का मतलब ही है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मतलब अलग अलग मार्शल आर्ट्स का मिक्सअप। कुछ ओके भी सो लिखा इसलिए सकते हो इसमें इसमें। पंच किक, रेसलिंग, सब चीज है, एवरीथिंग इज देयर। ओके बट हमारे इंडियन फॉर्म में, इंडोनेशियन फॉर्म में, या आप इसी में देख लो, टाइकोंडो में देख लो, कराटे में देख लो, इसमें कुछ चोक्स वगैरह नहीं है। ओके। ओके सो ये बेसिकली इसके लिए अलग आर्टी है, ग्रैपलिंग जिujutsu, जिसको उसका ज्यादा नॉलेज होगा दे कैन गिव यू मोर बेटर आंसर। मैं चोक्स को तोड़ना, अनलॉक करना सिखा सकता हूँ, चोक्स देना सिखा सकता हूँ। ओके ओके। बट बेसिकली वी डोंट गिव प्रॉपर ट्रेनिंग अबाउट चोक्स, वी आर मोर इनटू किक्स, पंच, स्वॉर्ड फाइटिंग, स्पीयर फाइटिंग, 2 मैन फाइट, 3 मैन फाइट। ओके, एक सिचुएशन हमेशा आती है, पता है क्या? कभी आपके ऊपर कोई बैठ जाता है झगड़े में, ठीक यस है, यस यस यस। आपके दोनों हाथ उसके घुटने के नीचे, वो आपके ऊपर बैठ गया, लाइक वेरी हाँ ऑफन हाँ सिचुएशन। हाँ। क्या उस सिचुएशन से कैसे निकल सकता है? यू हैव टू यूज योर लेग, लेग इन व्हाट क्योंकि वे? वो आपका आपका हाथ ब्लॉक करने के लिए वो आपके एब्डोमिनल पार्ट में बैठेगा, जो कि आपका पेल्विस से ऊपर वाला पार्ट है। ओके आपके लगभग चेस्ट के आसपास बैठेगा वो। चेस्ट के वो आपका आसपास। तभी हाथ ब्लॉक कर पाएगा। अब वो अगर हाथ ब्लॉक करेगा तो वो पाँव नहीं ब्लॉक कर पाएगा। ओके क्योंकि उसको ब्लॉक पाँव करने से में वो किक नहीं, ऊपर मतलब पीछे सक्सेसफुल है। मारना पड़ेगा। यस आपको किक मारने से पहले दोनों पाँव से ग्रिप बना के उसके ऊपर, फेस के ऊपर लाना पड़ेगा, और अच्छा उसको पीछे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, ताकि उसका विजन पहले फेडेड हो जाए। अगर वो ढंग से ओके देख नहीं पाएगा तो आपको प्रॉपर हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अच्छा हेल्पलेस हो, आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो हाथ से। ओके ओके। तो सो उसको आप बेसिकली पहले झटका बेसिक, दो आगे साइड में, यस यस यस, पैरों के जर्क तो पैरों के फेस फोर्स से। बचाओ अपना, हाँ, पीछे हाँ। की तरफ उसको पुश करो, पुश करते ही टर्न हो जाओ, पहले अपने ओके। आप को बचा लिया, उसके बाद अटैक करो। ओके।
अच्छा वैसे ना सबसे सही होता है एज ए अटैकर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो सबसे सही होता है अगर आपने किसी को पकड़ लिया है, जैसे कुछ भी आप ऊपर आ गए हो उसके, तो तुरंत से फेस पे पंच मारो आप। और पंच जैसे हम लोग ताइक्वांडो में सिखाते थे, तो वो ऐसे करके बोलते थे ताइक्वांडो, एक मतलब 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने ताइक्वांडो ऐसे करते थे हम लोग पंचेस। यस तो यस वो आप ऊपर आके और ताइक्वांडो ताइक्वांडो वाले हिसाब से वो करो। और एक और सबसे बेसिक चीज थे उसमें, आवाजें निकालते हैं, उसकी अलग प्रैक्टिस कराई जाती है कि आवाज निकाल यस के "हाय", तो कि यस अगला बंदा आवाज से डर जाए, आपके पंच में चाहे पावर ना हो, वो डर जाए। तो ये वाली जब चीज करते थे ना फेस पे, आपके कॉन्टिन्यूसली एक बार 3 पंच लग गए, ट्राई एक बार लग गया तो बंदा, मुझे तो मैंने जब भी देखा है कभी बंदा उठता नहीं है तुरंत से, अनटिल एंड अनलेस वो भी मार्शल आर्टिस्ट हो, वो लगने ही नहीं देगा। बट नॉर्मल बंदा नहीं चल पाता उसके बाद। लेट मी जस्ट शो यू। कैन यू डू दीज काइंड ऑफ किक्स? पूरा स्ट्रेट चली जाती हैं किक्स, बिल्कुल ऐसा ऐसा। अभी एट प्रेजेंट मैंने बहुत लाइक मोर देन 1 ईयर हो गया मैंने फुल स्ट्रेचिंग नहीं किया है। हम्म एक एज था जब हो जाता था, अब क्या है हम लोग इतना फुल प्रैक्टिस में नहीं है, हम लोग ज्यादा सिखाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, जॉब बहुत सारी चीजें हैं। सो हम्म। प्रोफेशन में जस्ट अपना सेल्फ प्रैक्टिस करने का ही टाइम निकाल पाते हैं, इतना कंडीशनिंग नहीं कर पाते। अच्छा, ये क्या, अच्छा स्ट्रेचिंग करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि मतलब एक बार जैसे लेग्स पूरा करने का, तो क्या किस हाँ, तरीके से कर सकते हैं? मेरा कभी भी नहीं हो पाया, आई ट्राइड अ लॉट, बट आर देयर लाइक सम वियर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स जिससे आप कर आपका सकते हैं? जितना लास्ट, जितना मतलब एज मच एज यू कैन तक होता है ना स्ट्रेचिंग, हम्म वहां तक करने के बाद आप ट्राई करिए हाथ नीचे नहीं रखने का, हाथ कमर पे रखने का ट्राई करिए, उतने में ही बैलेंस करिए। डेली 3 सेट्स में जितना देर हो सके करिए। डेली आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, डेली थोड़ा थोड़ा, हम उतना लोग जितना आप कर जैसे सकते हैं उतना स्प्रेड करने का। करने के बाद, जैसे स्प्रेड हो गया तो ऐसे यस मारते थे थाइस पे। यस हमारे कोच ने बताया था कि आप थाइस पे आप कॉन्टिन्यूअसली मारो, फिर उसके बाद फिर ओके। से और कोशिश करो और स्प्रेड करने का। तो मुझे, मैंने सुना था कि देयर आर सम काइंड ऑफ क्रीम्स और समथिंग लाइक दैट जो वो चीज एरिया को मुलायम कर देती हैं, सो दैट मोर फ्लेक्सिबल जी पे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, we don't prefer any kind of cream or anything for अच्छा। this stretching at least because it's totally natural. हम्म Okay, ज्यादा एज होता है तो आपको सीखने में टाइम लगता है, यंग एज में बंदा जो भी है बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक हम्म है। और इसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड हम्म स्ट्रेचिंग ऐसा एक्सरसाइज है जिसका बहुत एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस। आपका वॉकिंग पोस्चर ठीक कर देता है, ठीक है। हम्म। और आप बहुत मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपको एटलीस्ट अपना बैलेंस करने में भी बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा, किक्स परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा तो एक बंदा है हाँ। एक बंदा है जो हम्म लाइक एक एथलीट है, लाइक सुपर एथलीट है, उसने 100 माइल रेस किया है अपना, उसका है कि डेविड गॉगिंस नाम है। सो ही हैड दिस ट्यूमर जो मैलिग्नेंट नहीं था मेरे ख्याल से। सो वो कहीं जा नहीं रहा था एंड उसने अडेप्ट किया स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस फॉर 2 मंथ्स। लाइक दूसरे डॉक्टर्स ने बोला था कि ये नहीं हो सकता। सो उसका वो जो ट्यूमर है या फिर वो जो गार्ड थी वहां पे वो निकल गई लिटरली। ही डेली स्ट्रेचेस अच्छा, फॉर 2 आवर्स। सो हम्म। इट इज लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेचिंग, एंड स्पेशली फॉर समवन हु वर्क्स आउट या फिर डज समथिंग, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होती उसके। स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा तो अभी इस एज, जैसे हम लोग लाइक जैसे 25 क्रॉस करने के बाद अगर हम कोई चीज इनिशिएट करना चाहते हैं किसी मार्शल शेन आर्ट की, वेलास्केस लगा दूसरा वाला। हाँ, तो कोई इनिशिएट करना चाहते हैं हम, तो कौन सी मार्शल आर्ट इनिशिएट करें 25 के बाद, जैसे व्हेन योर बॉडी इज अ लिटिल स्टिफ? मतलब ऐसा कोई प्रेफर नहीं करेगा आपको कि कौन सा मार्शल आर्ट्स आप सीखिए। हम्म आपको जो भी सबसे नियर बाई हो, जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता हो, ठीक है, और जहाँ पे हम्म आपको एक बिगनर की तरह ट्रीट किया जाए, हम्म डजंट मैटर व्हाट योर एज इज, ओके। हम्म और आपको अच्छे से बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए, आपको रेगुलर तरीके से सिखाया जाए कि आपको ये करते वक्त ये करना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, आपको रेगुलर आना चाहिए प्रैक्टिस में, ये सारी चीजें। आपको डाइट के बारे में बताया जाए, इफ यू आर फेसिंग सम वीकनेस, ओके। हम्म। तो ये सारी चीजें अच्छा जहाँ पे अच्छे जैसे से सिखाया जाए, अभी, कोई भी मार्शल आर्ट ज्वाइन करिए, फॉर कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं मेरा प्रेफरेंस कि जैसे आपको मन है अभी भी मेरा सीखने का कि जैसे मेरे पास समर हॉलीडेज होते हैं, तो अभी इस बार तो सब गड़बड़ हो गया सिचुएशन। जैसे समर हॉलीडेज 2 महीने के, 1-2 महीने,
अगर मैं कोई पर्टिकुलर मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी कैंप में जाना चाहूँ या किसी जहाँ पे प्रॉपरली सिखाते हैं, तो ऐसी कौन सी इंडिया में जगह है जहाँ पे मैं जाऊँ, लेटर ऑन आई कैन प्रैक्टिस माई सेल्फ, कभी मैं अपने होम टाउन में आ जाऊँ? बहुत सारे जगह है, बहुत सारे प्रोफेशनल क्लब्स है, हाँ। बट इस टाइम पे क्या होता है, छुट्टियों के टाइम पे हम्म। सारे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सेल्फ डिफेंस कैंप्स लगाते हैं, हाँ। कोचिंग कैंप्स लगाते हैं, हम्म। ओके, जहाँ पे प्लेयर्स को काफी कुछ सिखाया जाता है। हम्म। तो आप लोग कोई भी ऐसा एसोसिएशन से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कहाँ पे कैंप चल रहा है। साई में भी कैंप चलता है, बेंगलुरु साई में टाइकोंडो के लिए स्पेशली बेंगलुरु साई है। बेंगलुरु साई के सेंटर में आप जाके सीख सकते हैं। यही है कि बेंगलुरु साई में सबको एंट्री नहीं मिलता है, यू नीड टू बी अ सीनियर नेशनल मेडलिस्ट हम्म। और इंटरनेशनल प्लेयर, तभी आप वहाँ पे एनआईएस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा बाकी अच्छा। तो और इंडिया में ऐसा कोई गवर्नमेंट सेंटर्स नहीं है, प्राइवेट सेंटर्स बहुत सारे हैं। स्टेट हम्म। एसोसिएशन को कांटेक्ट करिए, उनके पास सारा अपडेट रहता है, वो आपको अच्छा बता देंगे सबसे नियर बाई कौन सा है अच्छा है। अच्छा। और ओके एक्चुअल अमिताभ, आर्ट आपको स्टेट एसोसिएशन से मिलेगी। अगर कोई इस चीज में जैसे कि इस करियर में करियर एज अ करियर इसको परस्यू करना चाहता है या फिर कोई भी हम्म। कॉम्बैट स्पोर्ट करना चाहता है, तो क्या स्टेप्स होनी चाहिए उसको? किस तरह से वो फास्ट एक्नॉलेजमेंट ले सकता है और आगे आगे बढ़ सकता है? सो किस तरह से उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए उस चीज का? उसको प्रॉपर सबसे पहले एक अच्छे मास्टर के अंडर में ट्रेनिंग लेना चाहिए, मेंटर, हाँ। जितना ज्यादा टाइम दे सके वो इसमें अच्छा है। ट्रेनिंग लेने के बाद उसको अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्लियर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एंड इफ ही इज रियली डिजर्विंग ही विल रिप्रेजेंट इंडिया। ओके, ओके। अगर उसने अच्छा 2-3 बार इंडिया रिप्रेजेंट कर रखा है, आज के टाइम पे सबका मार्केट अच्छा है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री राइज कर रहा है, उसको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से बाहर जाने का, अदर कंट्रीज में रिप्रेजेंट करने का, इंडियन एथलीट्स को सिखाने का, ठीक है। एंड एज वेल एज ही कैन ज्वाइन स्टेट एसोसिएशन, लाइक मैंने ज्वाइन किया। स्टेट एसोसिएशन ज्वाइन ओके। करके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, अच्छा और जो भी आप अमिताभ, कोचिंग देंगे या मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरा सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो मैं चलाता हूँ। ओके तो मैं बच्चों को लाइक हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स होते हैं, वी ट्राई की प्रमोट करें स्पोर्ट्स, बट मुझे मार्शल आर्टिस्ट लाइक इन ए प्रॉपर मैनर नहीं मिल पाते सो दैट कि मैं बच्चों को प्रॉपरली सिखा पाऊँ। तो कुछ ऐसा ओके, तरीका है जिससे मैं प्रॉपरली फेडरेशन से जुड़ के या मैं अपने हाँ स्कूल हाँ हाँ, को मैं बिल्कुल जोड़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आई हैव अ कंपनी, 360 डिग्री फिटनेस एकेडमी। देयर इज हाँ। अ सेक्शन इन विच वी प्रोवाइड मैन पावर टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस आल्सो। लाइक हम्म। हमारे अंडर में जो ट्रेंड एथलीट है, जो लोग हम्म। पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, उन्हें हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी भेजते हैं ऑन हम्म। अ पार्ट टाइम बेसिस, 3 days और हम्म। ट्वाइस अ वीक। वो लोग हम्म। वहां पे जाके सिखाते हैं। सो आपको किसी क्लब्स वगैरह में कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, इट विल बी एक्सपेंसिव। आप हम्म। स्टेट एसोसिएशन को कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए आपके सीनियर प्लेयर्स जो है, एथलीट्स जो है, उनको हम्म। हमारे स्कूल में भेज दीजिए। 2 days इन अ वीक आपका जो भी पेमेंट होगा हम लोग वो क्लियर कर देंगे। और लेकिन आपको एक्चुअल आर्ट, एक्चुअल नॉलेज उन्हीं लोगों से मिलेगा, बिकॉज दे आर अच्छा। ट्रेंड अंडर ट्रेंड तो आप प्रोफेशनल। मुझे ये बताओ, जैसे एक एक जो होते हैं बोर्डिंग स्कूल्स में तो कोई भी मार्शल आर्ट प्रॉपर्ली सिखाई जाती है, तो यस, हमारा जैसे जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं कि हमारा 2 बजे 3 बजे छुट्टी हो जाता है, तो उसी बीच में हमें करना है, और हम लोग को भी कोई सारी चीजें होती हैं बिकॉज वी हैव टू फॉलो ए सर्टेन काइंड ऑफ करिकुलम, तो वो सारी चीजें हमें यस, फॉलो करनी है विच इज क्वाइट डिफिकल्ट इन इंडिया कि सारा चीजें मैनेज करके चलें। तो वो यस, करने यस, के राइट। लिए व्हाट वुड बी द इजीएस्ट फॉर्म कि हम कौन सा वाला फॉर्म करें जो बच्चों को पेरेंट्स भी अलाउ करें करने को, ज्यादा हाँ, फिजिकली मतलब इस टाइप का ना हो कि जो पेरेंट्स मना करें उसको, और इजीली हम उनको नेशनल या किसी चीज में प्रमोट कर पाए? आप लोग सबसे मतलब राइजिंग गेम्स को चूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। सबसे लेस कांटेक्ट वाला अगर कोई स्पोर्ट्स है मार्शल आर्ट्स में, तो वो पेंचेक सिलाती है, इंडोनेशियन फॉर्म, जिसमें फेस पे कोई अटैक ही नहीं होता है। माँ अच्छा। बाप सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, मेरे बच्चे का सिर फूट जाएगा, हाथ हाँ फूट हाँ जाएगा, हाँ चेहरा हाँ खराब हो जाएगा, ये सारी चीजें। हाँ तो हाँ इसलिए पेंचेक सिलात में क्या है, फेस का कोई अटैक ही नहीं है, आपको हाँ। सारे अटैक्स बिलो द नेक करना पड़ता है। ओके, अच्छा। पेंचेक सिलात कर सकते हैं, एशियन गेम्स में भी है ऑलरेडी। ओके, हाँ। इंडिया में काफी राइज हो चुका है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी है, हम्म। एसजेएफआई में भी है, मतलब बहुत सारे जगह पे है। तो आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, वो इसको सिखा सकते हैं, अच्छा ट्रेन प्रोफेशनल्स भी आपको मिल जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जहाँ भी है। और और तो दूसरा कुछ स्पोर्ट्स वगैरह मैं बोलूँ, कौन यस, सा राइजिंग स्पोर्ट्स में आपने क्या कौन सा बता रहे हो आप, राइजिंग स्पोर्ट्स? पेंचेक सिलात है। ओके, तो इसके कॉम्पिटिशन प्रॉपर अच्छे मैनर में होते हैं? हाँ हाँ हाँ, थंगता है उसके बाद, क्योंकि अच्छा थंगता को अच्छा। भी अभी अभी फिट इंडिया, अगर आप लोग पेज फॉलो कर रहे हैं आप लोग देखेंगे इंडिजिनियस स्पोर्ट्स पे पूरा सीरीज आया है, हम्म। इंडिजिनियस मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स पे। हम्म। तो फिट इंडिया पे थंगता 2-3 बार फीचर हो चुका है।
इस महीने को 20th को फिर से फीचर होने वाला है। तो अच्छा आप लोग उसको जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट भी कितना इंडियन स्पोर्ट्स को पुश करने का ट्राई कर रहा है। अच्छा ओके। अच्छा। हाँ, वो और एक फिट चीज इंडिया है मूवमेंट भी अमिताभ, हुआ था, अभी मोदी जी ने करवाया था जो फिट इंडिया मूवमेंट, उस पे भी आई गेस यस आई हैव सीन दिस स्पोर्ट। यस यस यस। अमिताभ एक और चीज है कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट गवर्नमेंट या फिर क्या करना चाहिए हमको हमारे यहाँ पे स्पोर्ट कल्चर और कॉम्बैट स्पोर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या नीड्स होते हैं और क्या क्या अवेयरनेस की जरूरत है जो सबसे एथलीट्स पहले को तो चाहिए? मेरा तो कहना एडवाइस यही है कि कंपलसरी कर देना चाहिए। पहली बात, सारे स्कूल्स या कॉलेजेस में कंपलसरी कर देना चाहिए। आप अगर हफ्ते में एक दिन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स देते हैं बच्चे को सीखने के लिए, इससे क्या होता है कि उसके लिए ये एक टाइप का को करिकुलर एक्टिविटी भी हो जाएगा, वो सीख भी लेगा कुछ, और उसके लिए एक फन हो जाएगा। कितने लोग तो बचपन से जानते ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। जिन लोगों को जानने को मिलेगा उन लोगों को एक नया आर्ट सीखने को मिलेगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको जिंदगी भर कंटिन्यू भी करेंगे, कुछ लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, एक चेंज आएगा सर्कल में, हर एक सर्कल में एक चेंज आएगा। जैसे मेरे सर्कल में मैं अकेला स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, कोई नहीं, ओके, तो माय फ्रेंड्स आर लाइक यार तू ही सही बंदा है यार, तूने लाइफ में वही किया जो तूने सोचा, जो तेरा पैशन था। हम लोग की तरह नहीं, मॉम एंड डैड का नहीं सोचा, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल्स कर लिया, लॉ पढ़ लिया। तो या व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट दैट। एंड आपको जानना चाहिए कि आज के टाइम पे मार्शल आर्ट्स हो या कोई भी स्पोर्टिंग बैकग्राउंड हो, यू कैन परस्यू इट एज अ करियर ऑल्सो। कोई जरूरी नहीं है कि आज के टाइम पे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो ही आप अच्छा लाइफ जी रहे हो। कोई भी आप काम कर सकते हो, पैशन होना जरूरी है, आप एंजॉय करो उस काम को, वो सबसे Yes, ज्यादा जरूरी है। yes. और एक सवाल आया था कि वो ऐसा था कि वेट ट्रेनिंग को और ये जो है कॉम्बैट स्पोर्ट या फिर जो कुछ भी है बॉक्सिंग वगैरह साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड किस तरह से किया जाए, क्योंकि यही आपको इतना एग्जॉस्ट कर देता है दोनों में से कोई भी एक। तो आप दोनों किस तरह से मेंटेन करके चल सकते हैं जिससे आपका लुक भी अच्छा रहे और ये भी अच्छा रहे? As being a martial artist, I will prefer आपको हर दिन मिनिमम 45 मिनट्स वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, 5 days इन अ वीक एटलीस्ट। अच्छा क्या है ओके। ना, लाइक जो भी एथलीट होते हैं, जो लोग प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जैसे मैंने भी लिया है, तो लाइक वी नीड टू अचीव अ वेट कैटेगरी। मार्शल आर्ट ऑलवेज हैपेंस अंडर वेट कैटेगरीज, ओके, वेट कैटेगरी। एज एंड वेट कैटेगरी। सो आपको एक वेट कैटेगरी में अचीव करना पड़ता है कि हाँ मैं इस वेट कैटेगरी में खेलूंगा, इतने इतने कैंडिडेट है, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। इस वेट कैटेगरी में कम लोग हैं, इस वेट कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, मैं डेफिनेटली गोल्ड मेडल मार के इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो आप अगर वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना प्रैक्टिस करेंगे, गेम प्रैक्टिस, तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे वो पोजीशन। सो आपको वेट ट्रेनिंग करना, सबसे पहले वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, फिट रहने के लिए, बॉडी का एक्स्ट्रा फैट काटने के लिए। ओके, आपको थोड़ा सा मार्शल आर्ट सीखना है। मार्शल आर्ट्स क्या है, बहुत थोड़ा सा टफ गेम है, बाकी गेम्स की तरह नहीं है। तो टफ गेम है तो आपको खुद को तो फिट रखना ही पड़ेगा। आप अगर खुद फिट नहीं है तो आप सामने वाले को क्या ही अटैक करोगे। आप ज्यादा से ज्यादा डिफेंस कर लोगे, भाग सकोगे। सो दिस इज प्रॉपर सेल्फ। प्रॉपर आपको सामने वाले के ऊपर अटैक करना भी आना चाहिए। ओके, सो इसलिए वेट ट्रेनिंग डेफिनेटली हर दिन मिनिमम 5 days इन अ वीक 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। मेरा क्या वेट कैटेगरी है, जैसे मैं फर्स्ट सीनियर नेशनल खेला था -63 में, फिर मैंने देखा हैवी वेट में कम कैंडिडेट होते हैं, तो मैंने गेनिंग की। मैंने एक साल में अराउंड 15-17 kgs गेनिंग किया। मैंने जिम किया, मैंने वेट ट्रेनिंग किया, मैंने अपना प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखा। देन आई प्लेड इन -80। ओके। लोग कहते हैं कि ज्यादा जिम करने से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आपकी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डाइट। Like we come from fitness industry and we always prefer, the most important thing is 70% diet, 30% workout. So 70% आपका डाइट है। आप जिम कर रहे हो और आप जानवर की तरह खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, सोच रहे हो मैं तो जिम कर रहा हूँ बॉडी बन जाएगी। गलत फहमी है आपका। आपको एक बैलेंस होकर चलना पड़ता है कि हाँ मैं जिम कर रहा हूँ लेकिन मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मैं सिर्फ डोले पे ध्यान दूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सब चीज बैलेंस करके चलना पड़ता तो है। अपने एक्सरसाइज फिटनेस को के लिए प्रॉपर अगर टाइम देना आपको पड़ता है, टॉप 3 नॉलेज को एडवाइस प्रॉपर देनी टाइम है, देना पड़ता है। अगर आपको फिटनेस के लिए या डाइट के हिसाब से आपको टॉप 3 एडवाइस देनी है, तो व्हाट वुड यू गिव? हेलो हेलो, एडवाइस तो ऐसे बहुत सारा है, टॉप 3 बट मतलब सबसे मैं ऊपर के जो 3 वाली। एडवाइस दूंगा, टॉप 3 जिनको 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 हमारे फॉर्म में जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, सबसे पहला, स्टे डिसिप्लिन्ड, ईट हेल्दी, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, दैट्स इट। Okay, do you avoid sugar? If you will White stay sugar. disciplined,
you will be motivated. या ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करके आप हनी में कन्वर्ट करिए, गुड़ में कन्वर्ट करिए। नॉर्थ इंडियन, मैं भी नॉर्थ इंडियन ही हूँ, तो हम लोग के भी घर में काफी शुगर यूज होता है, बट आई नो कैसे भी करके फैमिली में रह के आप नहीं अवॉइड कर पाते, बट ट्राई करिए जितना हो सके कम लेने का। अच्छा, ओके, सो तो आई गेस आज का पॉडकास्ट हम लोग खत्म करते हैं इसी नोट पे। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम अमिताभ, और ये जो सारी चीजें हमने सीखी, सबसे मेन चीज है हम लोगों ने मार्शल आर्ट के बारे में जाना कि हमारे इंडियन मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छे हैं। जो चीज अगर हम प्रैक्टिस करें, आवर गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग आवर मार्शल आर्ट्स, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है आपको करना है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आपने कोई भी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं या कोई भी मार्शल आर्ट कर रहे हैं, इट डजंट नीड एनी इक्विपमेंट, आप खुद से घर पे भी कर सकते हैं। वीडियोस भी हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस, देयर आर वर्चुअल ट्रेनिंग, यू कैन डू दैट। और सबसे मेन चीज है, अगेन जैसे अमिताभ ने कहा, 70-30 रूल ऑलवेज रिमेंबर। डाइट पे फोकस करिए, 30% वर्कआउट कीजिए और आपकी जिंदगी अच्छे से अच्छी हो जाएगी।